Hello and welcome to I'm the Best Mom cover page cover story. Hope you all are keeping well and staying healthy. You have been getting the answers of your question and benefits of cover page cover story on various health issues. We are running this special series on COVID-19, Wave 2 in children, Road to Recovery, and vaccine myths and facts in pregnancy. And today we are going to have a special session with Dr. Sunil Jindal in conversation with Dr. Anuj Rastogi sir to understand in detail the myths and facts about black fungus or mucormycosis. Now, before we get into the discussion, it's an honor and pleasure to have Dr. Sunil Jindal with us. Now, when I'm going through the learning, the experiences of Dr. Sunil Jindal, Dr. Jindal is a scientific director and the chief consultant, laparoscopic surgeon, andrologist, and reproductive medicine specialist at Jindal Hospital, Meerut. Sir is the vice chairman with a Delhi ISAR, gold medalist at MAMC, and with more than 35 awards from different organizations in collaboration with multiple institutions. Research has been his passion, including the prestigious American Center for Reproductive Medicine, national and international master. He's a trainer in both offline and online as well with international credits. First time, the first micro TAC baby of North India, genetic male giving birth to twins, 5 micro TAC babies born in the same day. Now, so many accolades to Dr. Sunil Jindal. Now, 6,500 babies by different procedure in last 18 years. Publication, presentation, more than having 8 textbooks on fertility, more than 200 national and international presentations. Special interest with fertility enhancing and gynecological laparoscopic surgery, especially with reproductive, then endolaparoscopic and microscopic andrology surgeries, surgical, medical, and laboratory. Now, it will go on the credit which Dr. Sunil is carrying. Sir, it's an honor to have you today with us on Cover Page Cover Story, but I'm the Best Mom. With this, I request Dr. Anuj Rastogi sir to take on the discussion with Dr. Sunil Jindal. Thank you, Deepmanji. And this Corona wave second is going on, and there are a lot of mortality with this. So I think this Corona second wave devil was not enough for us. There's one more devil along with the Corona as a black fungus. It is a double whammy.
And we will be talking about this black fungus with Dr. Sunil Jindal, who has a great interest in research, and he has a lot of research about the fungal infection and this mucormycosis. We will be utilizing his experience and research about mucormycosis and how can we prevent this. So fungus, any fungus, we all know about the fungal infections. चाहे हम मेडिकल फील्ड से हैं या हम कॉमन पर्सन हैं, we also know about fungus. And we have seen fungus in our house also at some time over the bread, when we keep bread in the open area or we keep bread in a dump area, and there is a white, green, gray layer over these. These are fungus. Sometimes we can see in the pickle container when we keep container open, even at the pickle there is a lot of fungus. Or you keep that in the dump area. So we all know what is fungus. And in children, in newborn, we see lot of fungus in the mouth by the name of Candida, as we all are aware of the Candida infection in the mouth or in the perianal area. So all young parents know about this, and it is famously treated by candid mouth paint as well. And we know tinea capitis, जो हमारे सिर पे हो जाता है टीनिया का इन्फेक्शन. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस इन्फेक्शन. एंड टीनिया स्किन इन्फेक्शन, जो रिंग वर्म, जिसे रिंग वर्म के नाम से कहते हैं, दिस इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन. एंड दीज आर वेरी वेरी कॉमन. हम कभी हमें लाइफ में हमें हुआ होगा फंगल इन्फेक्शन, या हमारी फैमिली में किसी और को हुआ होगा. सो फंगल इन्फेक्शन इज नॉट अनकॉमन. देन व्हाई सो मच वरी अबाउट दिस ब्लैक फंगस? Actually, this black fungus is not that common, and the infection is devastating. It's a very serious infection if it happens to any person, any human being. So, Dr. Sunil, will you tell us about what is this black fungus? It's a very interesting question. First of all, let me thank Dr. Anuj for inviting me. I have always been extremely inspired by the program which you do. And the other day when I was talking to you and you were telling me that you're doing this with the prime area to educate people, because you honestly feel at this stage of life, you need to give something to them which would be extremely useful in their day-to-day job. So I was seeing all the rest of the programs which you have done on the I Am the Best Mom, which is fantastic. I mean, I've seen so many programs and I realized they were all pertinent programs which are needed by people. And when you gave me a call and invited me for this particular black fungus program, I think I'm very privileged to be here and I feel very happy. And I would like also to thank all the people who joined in, because you could have been doing anything else, but to be here at this moment and try to understand something from Dr. Anuj and me, which can be used, I'm really honored for that. Something the way it happened today. I heard this immediately, black fungus. I realized that we had been doing a research with Cleveland Clinic on fungi in semen. So I was also realizing at that time, which is very rare, that this black fungus we need to understand. So black fungus is a fungus known as Mucorrhizopsis, and mucor is a kind of a fungus which normally doesn't affect human beings. ये इंसानों में नहीं आता. ये एक फंगस एक ऐसी चीज होती है जो पौधों पे लगती है, और आपने देखा होगा किसान जब स्प्रे करते हैं तो ये सब स्प्रे इसलिए करते हैं कि उनकी जो पैदावार है उस पे फंगस ना लगे. बट इट नेवर अटैक्स ह्यूमन बींग्स बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम doesn't accept fungus. So black fungus is like, I'll just explain to you in a very, very simple fashion. आपने अपने फ्रिज को बंद करके रख दिया होगा एंड उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है. When you open the fridge after some time, you realize it has fungus, just like bread, जिसे हम आम भाषा में फफूंदी बोलते हैं. तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं. खेतों में करीब करीब ये मान के चलिए 400 से करीब करीब 2000 पर क्यूबिक मीटर ये स्पोर्स खेतों में हो सकते हैं, खेतों की हवा में. घर में करीब करीब 30 से 50 होते हैं. ये स्पोर हम नॉर्मली अपनी सांस में लेते हैं, पर नॉर्मली ये स्पोर हमारे अंदर कभी भी पनपता नहीं है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसको पनपने नहीं देती.
लेकिन अब ये जो कोविड के पेशेंट्स हैं, इनको स्टेरॉयड मिली हुई है, इनको डायबिटिक है, शुगर की मात्रा तेज है, शुगर चाहिए पनपने के लिए, स्टेरॉयड मिले हुए हैं, तो ये जाके लंग्स के अंदर एंडोथेलियल सेल्स, नाक के अंदर से ब्रेन के अंदर ये जाते हैं और जाके ये फंगल इन्फेक्शन अफेक्ट कर देता है। तो इसको मेनली क्योंकि काले रंग का है, म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि ये काले रंग का है, दो फंगस लगती हैं इसमें, एक म्यूकोरमाइकोसिस, एक राइजोपस। सो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो काले रंग की फंगस है, ये फंगस आजकल इन्फेक्ट कर रही है। दिक्कत ये है कि इसकी जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी मतलब जो इससे अफेक्ट होते हैं उनके जो मरने की तादाद है, वो बेस्ट सेंटर में भी दुनिया में 50 से 60% होती है। दिक्कत यह है डॉक्टर अनुज। राइट, सो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। करीब एक डेढ़ महीना पहले जब मैंने पेपर में पहली बार पढ़ा कि मेरठ के अंदर 2 ब्लैक फंगस के पेशेंट मिले, सो आई वाज सो सरप्राइज कि ऐसा क्या हो गया। मैंने मेरे साथी जो यहाँ एक लीडिंग ईएनटी सर्जन हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता, उनके मुंह से एक दो बार म्यूकरमाइकोसिस का नाम सुना था। जनरली हमने बच्चों में तो कभी देखी नहीं है। एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे होते हैं जिनमें ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड कैंसर वगैरह, उनमें कभी कभी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो उनकी समरी में कभी कभी पढ़ने को मिल जाता है जब वो कैंसर हॉस्पिटल से समरी लेके आते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल बच्चों में कभी नहीं देखते। तो आई वाज सो सरप्राइज कि क्या होने लगा है। और धीरे 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 रोज अखबार के अंदर जैसे कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी, ब्लैक फंगस पेशेंट वालों की संख्या बढ़ती चली गई। एंड फिर पूरे कंट्री से ही रिपोर्ट्स आने लगी ब्लैक फंगस। और जो आई वाज सो सरप्राइज। एंड फिर हमने एज ए डॉक्टर हम लोगों ने सोचना शुरू करा क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक तो डॉक्टर सुनील ने बताया कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, सो फार अभी तक भी जो लोग जिन्हें डायबिटीज है वो डायबिटीज के प्रति, उसके कंट्रोल के प्रति बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, क्योंकि वो देखने में सही लगते हैं, एज सच कोई बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ स्टाइल में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो शुगर पे, बहुत सारे लोग तो इसी बात पे अटके रहते हैं हमें इंसुलिन नहीं लेना, 5-5 गोली खा लेंगे और इंसुलिन नहीं लेंगे और शुगर चाहे कंट्रोल हो या ना हो। एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया HbA1c, जिसकी संख्या भी वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रेगुलर उसका टेस्ट भी नहीं कराते हैं। वो जब उनकी शुगर गोलियों से कंट्रोल नहीं होती तो वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे डॉक्टर पे जाते हैं, और धीरे 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 उनका जो शरीर है कमजोर होता जाता है। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजीव, उन्होंने मुझे कई बार बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को चेस्ट में पेन भी नहीं होता, उनको उनकी नसें इतनी कमजोर हो जाती है, उन्हें जो हार्ट का जो पेन है वो पता ही नहीं चलता। तो डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है। और एक कोविड के दौरान जो डायबिटिक पेशेंट है या जो डायबिटिक नहीं भी है, उनकी भी बहुत ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो वो ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। और मोस्टली पेशेंट को जो लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है उसे रोकने के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, वो भी शुगर को बढ़ा देते हैं। और स्टेरॉइड के साथ अक्सर जैसे बच्चों के मुंह में फंगस लग जाती है, ऐसे ही ये ब्लैक फंगस कुछ लोगों में डेवलप हो जाती है। अब इसमें डॉक्टर सुनील, एक तो ब्लैक फंगस का जो एक कारण आपने बताया डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोविड इटसेल्फ इम्यूनिटी को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट वेव में ब्लैक फंगस का नाम नहीं सुना था बट सेकंड फेज में आया। तो सेकंड फेज में एक चीज और भी हुई कि फर्स्ट फेज में एक तो नंबर ऑफ पेशेंट कम थे और इतना ऑक्सीजन का शोर नहीं था कि ऑक्सीजन की जो कमी हो गई। इस सेकंड वेव में जो अगर हम डाटा देखें तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और हमें डिफरेंट सोर्सेज से ऑक्सीजन अरेंज करनी पड़ी जान बचाने के लिए। तो क्या डॉक्टर सुनील, क्या ये ऑक्सीजन से रिलेटेड भी हो सकती है ब्लैक फंगस? आपका विचार क्या है इस बारे में? ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी और जिनको ऑक्सीजन लगने में, देखिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी थी कंट्री में इमरजेंसी ये थी कि ऑक्सीजन थी नहीं। अब दो तरह की ऑक्सीजन होती है, एक होती है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और एक होती है इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन। तो जो प्योरिटी होती है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की वो हायर होती है, उसके अंदर से जो उनके कंटेनर भी होते हैं वो भी भरे जाते हैं जिससे उनमें कोई कॉन्टेमिनेशन ना हो। अब जब ये इमरजेंसी हुई और ऑक्सीजन कहीं थी नहीं, किसी तरह से ऑक्सीजन चाहिए थी, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मूव कर दिया गया मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ। इमरजेंसी थी, कोई ऑप्शन था ही नहीं और किसी ने ये आज तक सोचा नहीं था कि
कि आप ऑक्सीजन देंगे और इससे कोई म्यूकोरमाइकोसिस हो सकती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गई, एक तो ये कारण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण के अलावा जो बॉटल लगती हैं, जो वाटर होता है, जो पाइपिंग चेंज करनी है। अब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास में कल फोन आया, जहाँ मेरे गांव में एक जगह खेती जहाँ होती है, उनके परिवार में उनका फोन आया कि साहब वो ब्लैक फंगस हो गई है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो मैंने पूछा भाई कहीं अस्पताल में भर्ती थे? बोले ना जी। मैंने कहा फिर ऑक्सीजन ली थी? बोले हाँ जी। मैंने कहा ऑक्सीजन कैसे ली थी? बोला जी सिलेंडर भरवा के घर पे ली थी। मैंने कहा कितने दिन ली थी? बोले 5 दिन ली थी। मैंने कहा और क्या किया था? बोला जी गांव के डॉक्टर ने डेकाड्रॉन लगाया था। मैंने कहा कितना लगाया था? मालूम चला बेइंतहा डेकाड्रॉन लगा बंदे को। जो सिलेंडर है वो जाके भरवा के ले आए और लगा ली। उसकी बोतल खुद नहीं धोई, सफाई नहीं की, पाइप चेंज कहाँ होना है? वो तो शुरू में जो आ गया वो शायद जमीन पे गिरे, कहीं गिरे, फिर लग गया। रिजल्ट क्या हुआ? बाद में मैंने उनसे पूछा जी ये डायबिटिक है क्या? तो बोले जी शुगर कभी चेक नहीं हुई। मैंने कहा अब क्या है? बोला जी शुगर बढ़ी हुई है। तो हुआ क्या कि इस दौरान में बहुत स्टेरॉइड लगा, लोगों ने स्टेरॉइड जल्दी लेना शुरू किया। व्हाट्सएप पे मैं कितने ऐसे मैसेजेस जानता हूं जिसमें ये लिखा था कि साहब आप जो है स्टेरॉइड की गोली शुरू में चालू कर लो जिससे आप बच जाओ। तो दूसरे तीसरे दिन ये गोली जो बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है चालू हो गई लोगों में। तो जब स्टेरॉइड हाई होता है, तो डॉक्टर अनुज आप तो खैर बहुत ज्यादा जानते हो, आप देखते हो, जब स्टेरॉइड हाई होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो जो प्री डायबिटिक भी होता है वो भी डायबिटिक बन जाता है, और जो डायबिटिक है उसकी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो आपने स्टेरॉइड दे दिया, इम्यूनिटी डाउन हो गई, द शुगर राइजेस, बिकॉज ऑफ द राइज इन द शुगर what happens? There is an environment of low immunity and high sugar. And sugar and high sugar and low immunity is needed by the spores. ये जो स्पोर होते हैं छोटे छोटे, ये स्पोर जाकर बैठ गए, जो पहले मार दिए जाते थे वो पनपने लगे। और पनपने में दिक्कत क्या है कि नाक के थ्रू गए, साइनसेस में गए, दिमाग में गए, आंख में गए, चेहरे पे आए, और ये पूरी कहानी चालू हो गई इस फंगस का दिमाग के अंदर, आंखों में और पीछे यहाँ बढ़ने का। इम्यूनिटी डाउन है, फफूंदी की तरह बढ़ने लगी, और सिचुएशन ये मौजूद हो गई। देखिए जो फंगस है ना वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल और प्लांट के बीच का है, अगर हम इसे मेडिकल डेफिनेशन से देखें। और फंगस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कुछ खाने को चाहिए, तभी वो उसकी जो प्रजाति है, जो उसकी जनरेशन है, तभी वो एडवांस करती है। तो जब फंगस नाक में पहुंच जाती है तो वो हमारे टिश्यूज को खाना शुरू कर देती है। फंगस के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हमारे टिश्यूज को खा जाते हैं, और फंगस की जो संख्या है, जब उसे खाना अच्छा मिलता है तो वो मल्टीप्लाई करने लगती है। और इस फंगस को एंजियो इन्वेसिव कहते हैं। एंजियो इन्वेसिव का मतलब ये खून की नसों को भी खा जाती है, एनगल्फ कर लेती है। तो कुछ केस ऐसे भी आए कि उनका ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया, या खून की नस ब्लॉक हो गई तो उन्हें स्ट्रोक हो गया, किसी की आंख बाहर आ गई, किसी की आंख का मूवमेंट बंद हो गया। और इसका जो पहला सिम्टम नाक में जाने के बाद होता है कि नाक से गंदे सिक्रीशंस आने लगते हैं, और कभी कभी नाक से ब्लड आने लगता है, नाक में बदबू आने लगती है, चेहरे पे पेन शुरू हो जाता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है पेशेंट के। और जब तक वो समझता है तब तक उसकी आंख भी काली पड़ने लगती है। यही सबसे खतरनाक म्यूकरमाइकोसिस है। और जगह भी म्यूकरमाइकोसिस होती है, लंग में भी हो जाती है, स्किन पे भी हो जाती है। बट जो ये म्यूकरमाइकोसिस है इसको कहते हैं राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। तो दिस इज वेरी डेंजरस। इसमें कुछ लोगों की आंख तक निकालनी पड़ी, जो इसका ट्रीटमेंट है। जो लोग इसकी जो एंटी फंगल ड्रग है जो बीच में शॉर्ट हो गई थी, जो उससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं, वो उनका उनको इनिकुलेट करना पड़ता, उस जो टिश्यू को डिब्राइड करना पड़ता है। जो टिश्यू इन्फेक्टेड है उसे पूरे के पूरे को निकाल के फेंकना पड़ता है। जैसे कैंसर के अंदर कैंसर सेल को निकाल के फेंकते हैं, ऐसे ही इसमें टिश्यू को निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को डिसफिगरमेंट हो जाता है, चेहरा खराब हो जाएगा, उनकी आंख आंख जैसी चीज उनकी निकालनी पड़ जाती है। सो इट इज सो डेंजरस।
एंड इट इज सो सरप्राइजिंग, जो म्यूकरमाइकोसिस के केस और जगह नहीं देखे गए हैं। डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ पे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ कोविड पेशेंट में तो उनके अंदर एस्परजिलोसिस हुई है और या एक कैंडिडा हुआ है। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर ये ब्लैक फंगस आई है। शायद ये जो हमारा टेम्परेचर है, जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फंगस ज़्यादा डेवलप हुई है। एक डॉक्टर सुनील ने बताया इंडस्ट्रियल गैस और मेडिकल गैस। जो इंडियन इंडस्ट्रियल गैस है उसकी जो फिलिंग है और उसकी जो उनके जो कंटेनर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और मेडिकल गैस की कंटेनर डिफरेंट है। मेजर डिफरेंस ये है, जब मेडिकल गैस, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है तो उससे पहले सिलेंडर की कुछ क्लीनिंग होती है और उसके लिए मशीन भी अलग होती है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एंड मैं जब छोटा था तो मैंने देखा कि मेरे घर के पास जो गवर्नमेंट की पाइपलाइन थी, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन थी, उन्होंने उस नल को रिपेयर कर रहे थे। एंड व्हाट आई सॉ, जैसे ही उन्होंने उस पाइप को निकाला तो उस पाइप के अंदर बहुत ग्रीन ब्लैक मटेरियल जमा हुआ था। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि हम ये वाला पानी पीते हैं। तब से मैं थोड़ा पानी पीने में भी डरने लगा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास होता रहा, एक्वागार्ड और ये सब आ गए, आरओ सिस्टम वगैरह। ऐसे ही जो हमारी हॉस्पिटल में लाइनें होती हैं उनके अंदर भी हो सकता है कुछ रहता हो, जब वो कांस्टेंट, क्योंकि वो तो बहुत पतले पाइप हैं एंड देयर इज नो मेथड टू क्लीन देम। एंड जैसे पानी के नलों पे तो हमने एक्वागार्ड लगा लिया, बट अभी ऑक्सीजन के पाइप पे तो अभी कोई सा गार्ड नहीं है। तो दैट कुड बी ऑल्सो वन प्रोबेबिलिटी कि वहां से कोई इन्फेक्शन ट्रेवल हुआ हो। और एक एक एस्पेक्ट है मास्क, जो मास्क के बारे में भी काफी बात करी जा रही है। बहुत सारे लोग मास्क तो पहन रहे हैं बट उनके पास एक प्रॉपर मास्क नहीं है, और एक ही मास्क को वो कितना क्लीन करते हैं। जैसे नेबुलाइजर किट के बारे में मैं बताऊंगा मास्क के साथ। बहुत सारे लोगों को खांसी में नेबुलाइजर लेने बड़ा अच्छा लगता है, या वो सोचते हैं कि नेबुलाइजर से बहुत फायदा होता है, वो बिना डॉक्टर के बताए कुछ इंजेक्शन उसमें डाला और लेने लगते हैं। बट वो ये कभी नहीं जानते कि जो उसका मास्क है वो उनके बच्चों को या उनको निमोनिया कर सकता है। वो नहीं जानते कि उस मास्क को भी साफ करना होता है। वो नहीं जानते इस मास्क को सिरके से साफ करा जा सकता है। वो ये नहीं जानते कि ये जो मास्क है ये जिंदगी भर वाला मास्क नहीं है, इसे चेंज भी करना पड़ सकता है। और अगर किसी आदमी को आप समझाने की चेष्टा भी करते हैं तो वो ये बताएगा जी इन्हीं का है, ये तो हमारे बाबा जी का ही मास्क है। अब बाबा जी का भी मास्क है, अगर बाबा जी बार बार यूज कर रहे हैं उसे, तो उसे भी स्टरलाइज करना पड़ेगा। आप कभी ऐसा तो नहीं कि अंडरगारमेंट्स एक बार पहन लिया और फिर साल भर बाद चेंज करें। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टरलाइजेशन क्या है इस बात को समझना। लोग अपने बच्चों को लेके लूज मोशंस के लिए परेशान रहते हैं, और इंडिया में तो लूज मोशंस बहुत ही कॉमन है, हर 15 दिन में या एक महीने में हर बच्चे को हो जाता है। बट अगर आप उनकी बॉटल देखो तो बिल्कुल भी साफ नहीं होती है। बॉटल का स्टरलाइजेशन वो नहीं जानते हैं, और बॉटल के निपल पे उंगली लगा के हिलाते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में स्टरलाइजेशन की, या जिस सामान को हम यूज कर रहे हैं उसे कैसे साफ करना है, ये भी उन्हें, जब भी आप कभी नेबुलाइजर ले रहे हैं या आप आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले रहे हैं, और इस बात के मुद्दे पे पड़े हुए 2 लीटर वाला लें और 5 लीटर वाला लें और 10 लीटर वाला भी लें। डॉक्टर सुनील, जब मैं कभी ऑक्सीजन थेरेपी पे टॉक देता हूँ तो देन आई फाउंड इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, एंड देयर आर सो मेनी फिजिक्स फार्मूला, देयर आर सो मेनी मेथड्स, जिससे हम कितने लीटर दे रहे हैं, आपका नाक का साइज क्या है, उसका उसमें आपने जो कैनुला डाला है वो कितना बड़ा है, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसके अलावा आपकी कार्डिक आउटपुट क्या है आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आप जो मेडिकल ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले रहे हैं, या 2 लीटर वाला ले रहे हैं या 8 लीटर वाला ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपको बेसिक ऑक्सीजन चाहिए तो बेसिक मिनिमल लेवल पे मेंटेनेंस आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से अपने घर पे कर सकते हैं। और उसकी क्लीनिंग कैसे होनी है, आप थर्मामीटर भी तो धो के रखते हैं ना, तो ये क्लीनिंग हमें समझनी पड़ेगी। और इस बारे में बिल्कुल भी केयरलेसनेस एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड भी ब्लैक ब्लैक फंगस हुआ है। कुछ ऐसे केस भी आए जब वो कोविड से सही होके चले गए तो उन्हें घर जाके ब्लैक फंगस हो गया। और जो पल्मरी ब्लैक फंगस है, पल्मरी म्यूकरमाइकोसिस है, उसको डायग्नोस करना भी बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि उसके लिए आपको ब्रोंकोस्कोपी करानी पड़ेगी। वो एक्सरे के अंदर कोई उसकी डायग्नोस्टिक पिक्चर नहीं नजर आती जिसे देख के डॉक्टर बता दे ब्लैक फंगस है।
जैसे नाक पे ब्लैक फंगस होती है, आंख पे ब्लैक फंगस होती है, तो आपको एक उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से आइडिया लग जाता है दिस इज ब्लैक फंगस, एंड देन यू टेक द टिश्यू और यू टेक दैट स्वाब and you do staining with the microbiologist and you find out this was a mucormycosis. But in chest cases, in pulmonary cases, you will not find it out. And जब आपका जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चलने के बाद भी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर सोचता है कि आपको ब्लैक फंगस हो सकती है। देखिए, जो बहुत सारी बार ये फंगल इन्फेक्शन इसलिए भी हो जाते हैं या और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसलिए भी हो जाते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक। आज आप जिस भी व्यक्ति से बात करो जिसका गला खराब हो गया, तो इट हैज बिकम सिनोनिमस टू हैव एजिथ्रोमाइसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। फोन करके ही पूछेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन दे दिए, कितनी दे दिए, क्यों दे दिए, दे डोंट नो। बट आप बात बहुत करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, बट वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। मेक ए नोट, अगर हम वायरल इन्फेक्शन कह रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है और एंटीबायोटिक खाने से कोई फायदा नहीं होगा। But this indiscriminated use of antibiotic has wasted lot of antibiotics also. Septron, जब मैं छोटा था सेप्ट्रॉन आती थी और बहुत इफेक्टिव थी, फिर धीरे 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 वॉश आउट ही हो गया, उसका इफेक्ट ही आना बंद हो गया। ऐसे एक एक दिन अगर इतना इंडिस्क्रिमिनेटेड यूज रहेगा एंटीबायोटिक्स का और इन दवाइयों का, तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे ही बेकार हो जाएंगी। डॉक्टर सुनील, थोड़ा मास्क के बारे में बताइए, मास्क केयर के बारे में। डॉक्टर अनुज, आप टू द पॉइंट हर पर्सन को वो बता रहे हैं कि करना क्या है। और अब 4-5 चीजें, सबसे पहले तो मास्क के बारे में। देखिए, मास्क एक ऐसी चीज नहीं होती जो आप कभी भी एक बार पहन के और लगातार आके पहनते रहे। जैसे मैं कभी कभी देखता हूँ, मेरी क्लिनिक में गांव वाले आते हैं, तो जो आदमी होता है वो कुछ लपेट लेता है तौलिया टाइप, और औरत होती है वो अपनी, और ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि साड़ी लपेटने से या ये लपेटने से सफाई हो गई। लेकिन इससे खराब चीज है मास्क। आप एक बार एक मास्क कपड़े का खरीदते हैं, वो गीला हो, सूखा हो, गंदा हो, खांसा हुआ हो, कैसा हो, आपने उस मास्क को यूज किया बिना धोए। तो देखिए, मास्क के बारे में 4 चीज समझिए। मास्क आप अगर कपड़े का लगा रहे हैं तो वापस ले जाके धुलना है, धुलने सूखना है, और सूखने के बाद में उसको यूज करना है। आप बिल्कुल जेन्युइनली ऐसे समझिए जैसे कि आपका मोजा साफ रहना चाहिए और उसके अंदर बदबू आने लगती है। आपने देखा होगा मोजे के अंदर बदबू आने लगती है, वो बदबू इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है। और हमारे पैर में से तो कोई बैक्टीरिया भी नहीं निकलते, जबकि हमारे मुंह में इतने बैक्टीरिया होते हैं, हमारे नाक में इतने बैक्टीरिया होते हैं। तो एक तो मास्क धुलना है, रेगुलरली धुलना है, धुला हुआ पहनना है। बल्कि हम लोगों के तो सिस्टम में मिनिमम हर आदमी पे 5 मास्क होने चाहिए, हर दिन का 1 मास्क आपने पहना। हम लोग अगर देखें, हमारे अंडरगारमेंट्स भी कोई ऐसा तो होता नहीं कि 2 अंडरगारमेंट है, हमारे पास भी एक सेट होता है। इसी तरह मास्क का एक सेट चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आप पेपर का ट्रिपल लेयर मास्क डिस्पोजेबल ले सकते हैं, तो आज के दिन में जिस तरह से आप डिस्पोजेबल कप में चाय नहीं पीते, क्या आप उसका कप यूज नहीं करना चाहते? जैसे कि आप आज के दिन में गौर फरमाएं, आप पानी की बोतल खरीद के लेते हैं, बाहर से पानी नहीं लेना चाहते आप किसी भी नलके का। इसी तरह से अगर आप ट्रिपल लेड कागज का मास्क ले सकें तो वो लें, वरना मास्क को धो के परफेक्ट मास्क लें। दूसरी चीज, प्लीज, जो डॉक्टर अनुज ने कही रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान एक ऐसी दवा जगह है जहां पर द केमिस्ट बिकम्स द डॉक्टर। मैंने कितनी बार देखा है, हमारे बराबर के केमिस्ट के पास में आदमी आके खड़ा होता है, खुश करने के लिए उससे बोलता है, डॉक्टर साहब जुकाम हो रहा है, 4 दिनों से कोई दवा देना। वो 4 पत्ते यूं काटता है, हाथ में देता है और बड़ी शान से बताता है, 1 गोली सुबह शाम। अब पता है दुख की बात, हिंदुस्तान में बिना प्रिस्क्रिप्शन के सब कुछ मिलता है और सब लोग खाते हैं। जुकाम हुआ नहीं, बुखार हुआ नहीं, एजिथ्रोमाइसिन ले ली या कोई भी एंटीबायोटिक सिप्लॉक्स जैसी ले ली। आजकल तो एक अलग सी चीज हुई है, आपको बुखार हुआ नहीं कि आपने प्रेडनिसोलोन या मेड्रोल की गोली ले ली। जब आप इस दवा को तब ले लेते हैं जो चाहिए नहीं, तो ये फायदा नहीं करती, ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है, शुगर बिगाड़ देती है,
मास्क आपने गंदा पहना हुआ है, इस गंदे मास्क के साथ में आप बाहर निकल जाते हैं, उसी में खांसते रहते हैं, वो ही गीला होता रहता है। ये एक चीज समझिएगा, स्पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं गोबर में, स्पोर्स बेइंतहा होते हैं खाद में, स्पोर्स बहुत होते हैं हरियाली में। आपने जाके गार्डन में काम करना शुरू कर दिया, आपने खाद यहां से वहां की, मिट्टी में हाथ सने, कपड़े से पोंछ लिए, मास्क से लगा दिए, आपका मास्क नीचे गिरा मिट्टी में, आपने झाड़ के वो मास्क ले लिया। तो इसलिए जरूरी है कि ये सब सैनिटाइजेशन रखें। और अगर आपको कोविड हुआ है तो समझिए, वापस आके कुछ रेस्ट करें, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी रेस्ट में होगा, हरी सब्जी ले, सफाई में ले। जिन जिन के घर में एयर प्यूरिफायर है, बात को समझिए, बड़ी जरूरी चीज है। एयर प्यूरिफायर पोल्यूशन से ज्यादा आज के दिन में ज्यादा जरूरी है। अपने घर में उस एयर प्यूरिफायर को चला के रखें, वो एंटी वायरल है, एंटी स्पोर है। और साथ साथ कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लें। जो पेशेंट, जो लोग देखता हूँ या मिलता हूँ, उनकी सेंसिटिविटी डिफरेंट डिसीज के लिए डिफरेंट है। जो एक हमें पढ़ाया गया था, जो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एच एस मित्तल, वो हमेशा हमें पढ़ाते थे, ऑलवेज लुक फॉर द ट्रीटेबल पार्ट ऑफ द डिसीज, डोंट डू एनी हैंकी पैंकी थिंग, जो ट्रीटेबल है उसके लिए वरी करो। तो डॉक्टर का दिमाग जो है वो इसी तरीके से चलता है। फर्स्ट डू नो हार्म। पहले आप अननेसेसरी दवाई लेके, एक तो सबसे पहले जब आप बीमार हुए तो ये मान के चलिए कि आपने कॉफी पी ली, मुंह जल गया, अब 4-5 दिन के लिए तो जल ही गया। सो यू कैन नॉट हैसन दिस प्रोसेस कि आज ही एजिथ्रोमाइसिन खा लिया, आज ही आइवरमेक्टिन खा लिया, आज ही HCQ खा ली, फिर कोई मिला उसने बताया कि वो भी ले लेना, उसका काढ़ा पी लेना, और आपने इतना अपनी बॉडी को एक डस्टबिन बना के सब कुछ भर लिया। तब भी देखिए, अगर आप ज़्यादा दवाई लेते हैं तो शायद देर से सही होते हैं। मेरे पास इतने बच्चे बुखार के, लूज मोशंस वगैरह के आते हैं, आई हार्डली यूज एनी एंटीबायोटिक, और वो सब सही हो जाते हैं और जल्दी सही हो जाते हैं। बट इफ यू स्टार्ट देम विद एंटीबायोटिक्स और सिफ्लॉक्समेट्रोजिल और समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो वो दे विल स्टार्ट हैविंग वोमिटिंग आल्सो, लॉट ऑफ लूज मोशन, बिटरनेस ऑफ द टंग, ऑलरेडी उनकी एपेटाइट गई हुई है और खराब हो जाती है, एंड दे यू आर इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ मैनी थिंग्स, जो आप ठीक होते होते भी खराब हो जाते हैं, और आपकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बिल्कुल एंटायरली चेंज हो जाती है। जब आपको बीमारी में उल्टी शुरू हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है, तो आपकी एक एंजाइटी का लेवल आपका और आपकी फैमिली का और बढ़ जाता है। फिर ये डी डाइमर आ जाता है, कभी फेरेटिन आ जाता है, जो हम छठे 7वें दिन 8वें दिन टेस्ट कराना चाहेंगे, वो भी सिलेक्टिव केस के अंदर वो आप पहले से करा देते हैं। एंड यू बिकम ए जजमेंटल। अब आजकल हमारा जो व्हाट्सएप है वो CRP की रिपोर्ट से भरा हुआ है, लोगों को CRP पता चल गया तो वो CRP करा देते हैं। फिर उसमें रेंज पढ़ते हैं कि यहाँ 6 लिखा है तो 8 हो गया, ये तो 15 हो गया, ये तो 20 हो गया, एंड दे रियली वांट टू नो। सी अब वो कहेंगे इतना क्यों हो गया। तो देखिए, ये आपका काम नहीं है, आपके डॉक्टर का काम है इसे एनालाइज करना, और इसे इसे जज करने में, इसे सीखने में उम्रें बीत जाती हैं, तब तक नहीं आता है ये। तो आप अपने डॉक्टर पे, जिसे भी आप पसंद करते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उसी के साथ रुकें और उसे फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर सुनील, आप बताइए, अगर कोविड किसी को हो गया और वो रिकवर कर रहा है तो उसको आगे कैसे रहना है? डॉक्टर अनुज, मैं एक चीज पूछता हूँ, शायद या तो आप धरातल पे रहते हैं या इतना क्लोज रहते हैं कि आप सवाल वो पूछते हैं जो वाकई में सबसे पर्टिनेंट है। जी, हमारा एम ही ये है कि जो हमारे लोगों से अनजाने जाने में गलती हो रही है वो फिल्टर हो जाए, बिल्कुल। और एक सिस्टम से हमारी ट्रेन जो चले वो एक सिस्टम से चले। वॉट एवर इज हैपनिंग, बट स्टिल जिसे मिनिमाइज कर सकें और एंजाइटी को खत्म कर सकें, ये हमारा एम है। आपको सबसे पहले तो कोविड के दौरान क्या करना है? जी। अगर आपको बुखार हुआ है हम्म। तो अर्लीस्ट पॉसिबल टेस्ट कराना है RT-PCR। उसको डिले नहीं करना। ये नहीं कहना ये वायरल बुखार है, कोविड भी वायरल है। और उसके दो फायदे होते हैं, एक तो आप तैयार हो जाते हैं कि आपको टेस्ट करा लिया, कोविड है, तो परिवार से अलग हो गए इमीडिएटली, जिससे बाकी परिवार आपका सेफ हो गया, पहला। दूसरा, अगर आपको कोविड है तो फिर आप पूरी जंग के लिए तैयार हो गए। दो हिस्सों की जंग है। पहले हिस्से की जंग है
पहले 5 दिन। पहले 5 दिन की जंग में वायरस आपके शरीर में आया, वायरस ने आपके शरीर में आके घुसा, अंदर जाने के बाद में एंटीबॉडीज ने लड़ना शुरू किया। जो लड़ना शुरू किया, उस लड़ाई में जो शरीर को दिक्कत हुई, उसकी वजह से आपको बुखार हुआ। बुखार वायरस ने नहीं किया, लड़ाई ने बुखार किया। अब जब ये धीरे धीरे करके सेटल हो गया और 5 दिन में सेटल हो गया, तो 85% आदमी यहां पर विजयी हो गया पहली फेज में। अब क्या हुआ साहब? अब पहली फेज में आप ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे की बात आपको बताऊंगा। अब आप पहली फेज में ठीक नहीं हुए, आपको मालूम चल गया क्योंकि आपने पहले कोविड का टेस्ट करा लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, जिसमें क्या हुआ, आपको 6-7वें दिन बुखार है, हरारत है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको खांसी है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें टेलीफोनिकली। कोई स्टेरॉइड मत लीजिए मेहरबानी करके, पहले 5-6 दिन में मत लीजिए। व्हाट्सएप से इलाज मत कीजिए। हिंदुस्तान एक इतना खूबसूरत देश है जिसमें 99% आदमी डॉक्टर हो चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत ने आत्मनिर्भर इंसान को डॉक्टर बना दिया है। मत करिए। 6ठे दिन अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। जो टेस्ट बताएंगे उनकी रिपोर्ट उन्हें बताइए, खुद मत पढ़िए। सीआरपी मत पढ़िए जैसे कि आपको डॉक्टर अनुज ने कही है, रोज की कहानी है, सीआरपी रिपोर्ट पूछते हैं। डी डाइमर मत पढ़िए। अब क्या होता है, अगर ये 6ठे दिन के आगे बढ़ता है तो ये वायरस की वजह से नहीं होगा। आपका बॉडी जो इन्फ्लेमेटरी पैटर्न में जाके, साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान आता है शरीर में, और ये तूफान सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। और ये तूफान सेल्स को डैमेज करता है और साथ में कोएगुलेशन करता है, खून जमाता है। तो जब ये कोएगुलेशन करता है, खून जमाता है, अंदर से टिश्यू को इंजर करता है, तो क्या होता है, आपको सांस की दिक्कत चालू होती है। तो ये वायरस की वजह से नहीं है, प्लीज समझिए, ये आपका बॉडी जो रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से है। तब होता है स्टेरॉइड देने की जरूरत, जिससे इन्फ्लेमेटरी पैटर्न को आप मैनेज कर सकें। तब आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन 100% लेनी है। 15% मरीज होता है ये। इस 15% मरीज में से जो आदमी टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेगा उसके बचने की संभावना बहुत हाई है। पर जो यहां पर भी डिले करके और एंड में हॉस्पिटल में जाएगा, उसके लिए बहुत दिक्कत है। पहली चीज, अब कोविड से 2 कैटेगरी है ठीक होने की। पहली कैटेगरी है जो 5 दिन बाद बुखार नहीं है, ठीक है, मस्त हो गया वो। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म आया है, जिसके शरीर में दिक्कत हुई है। तो अब समझिए पोस्ट कोविड की कहानी। पोस्ट कोविड में नेचर में एक बहुत फेमस पेपर आया है जो मल्टीसेंट्रिक है। मल्टीसेंट्रिक मतलब वो पेपर में बहुत सी जगहें, पूरी के पूरे हिंदुस्तान की तो नहीं है, विदेश की हैं, जहां पर रिसर्च हुई है। रिसर्च होके उन्होंने अपने सारे मरीजों का नंबर को एकदम से कैलकुलेट करके देखा है कितने % मरीज में क्या हो रहा है। तो आप जान के सरप्राइज्ड होंगे, कोविड जाने के बाद में कोई ऐसा नहीं कि कोविड एक वायरस है जो फेफड़ों में गया। इसका साइटोकाइन स्टॉर्म आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपकी मसल को अफेक्ट करता है, आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, आपके पिनाइल टिश्यू को अफेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसे अफेक्ट नहीं करता। तो आप ये समझिए कि अगर ये हार्ट को अफेक्ट करेगा, जो करीब 15% में करता है, तो हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, उनको कोविड हो गया था, घर पे आ गए थे, निकल के पार्टी में एक जगह डांस कर रहे थे, हार्ट अटैक पड़ा, and he died right over there before he was even able to be taken to the hospital. And the result was because of the cytokine storm,
सबसे कमजोर एरिया उनका दिल था, क्योंकि हार्ट पेशेंट थे। और उस कमजोर एरिया के अंदर जब चोट लगी, एक तूफान आया मकान में, बहुत तेज तूफान आया, खिड़की दरवाजे सब बिल्कुल चिपके हुए हैं, जो सबसे कमजोर थी खिड़की के अंदर के कब्जे थे। उस समय कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद वो खिड़की गिर गई। बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो एक तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दूसरा लंग्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार सांस में दिक्कत होती है, बहुत टाइम तक बॉडी दर्द कर रहा होता है, जोड़ दर्द कर रहे होते हैं, बहुत समय तक फॉगिनेस होती है, मेमोरी कम हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन, दिल धड़कता है ज्यादा। इसे बोलते हैं कोविड लॉन्ग हॉल, पोस्ट कोविड लॉन्ग हॉल। और ये करीब करीब मान के चलिए, जो सेकंड स्टेज में गए होते हैं उनमें 30% लोगों में होता है, 30%। देयरफॉर आपको करना क्या है? डॉक्टर अनुज ने इतना, आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक। पहली बात तो करना, आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, जिससे ऐसा नहीं कि आपको कोविड हो गया दौड़ना भागना शुरू कर दिया, जिससे बॉडी आपकी रेक्यूपरेट कर सके। खाने में हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, गार्डनिंग नहीं करनी, आपको किसी रूप में धूल में नहीं जाना, गंदगी के पास में नहीं जाना। ब्लैक फंगस बहुत से उन लोगों में गई है जिन्होंने बाद में गार्डनिंग शुरू कर दी, गोबर की खाद हाथ में लेके काम करना शुरू कर दिया। सफाई से रहना है, और अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हार्ट पेशेंट है, जैसी कोविड होता है उसके बाद में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। किडनी पेशेंट है, फौरन अपने टेस्ट करके किडनी के डॉक्टर से मिलिए। आप लंग के पेशेंट हैं, छाती के, आपको एस्थमा है, फौरन मिलिए। अगर आपको दिमाग के अंदर किसी रूप में गड़बड़ी सी महसूस हो रही है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए, जिससे कुछ भी होने से पहले पकड़ के इलाज कर सके। बहुत बढ़िया बताया सुनील जी आपने। जो कि मैंने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास या तो दवाई लिखवाने जाते हैं, या जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं तभी जाते हैं, वो मेंटेनेंस के लिए नहीं जाते हैं। इसीलिए उनके साथ इमरजेंसीज ज़्यादा होती हैं, या उनके साथ बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जब भी आप बीमार होते हैं तो थोड़ा एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद मेंटेनेंस फेज चलती है, और वो मेंटेनेंस फेज कभी मेंटेन ही नहीं रह पाती, क्योंकि आप ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। और फिर उसके साथ आपको नई नई बीमारियां शुरू होती हैं, या आप कभी भी क्रश कर जाते हैं। एक डॉक्टर सुनील, अभी थर्ड वेव की बात और हो रही है, जब हम बात ही कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा ही कर रहे हैं, तो थर्ड वेव की क्या तैयारी करनी है, इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए। देखिए, मेरी और आपकी आज सुबह डिस्कशन हो रही थी। जी। और देखिए, एक बात आपको बताऊं, शायद डॉक्टरों के बारे में बहुत सारे नॉन डॉक्टरों को मालूम ना हो। डॉक्टर जब आपस में डिस्कस भी करते हैं ना, तब भी वो डिस्कस करते हैं कुछ साइंस की ऐसी बात, जिससे एक दूसरे का आदान प्रदान होके नई चीज समझ में आए, और इसका यूज आप ही के लिए होता है। अल्टीमेटली इट इज यूज्ड फॉर यू। सो थर्ड वेव एक ऐसी चीज है, देखिए, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, सेकंड वेव आई, पहली वेव से खराब सेकंड वेव आई। इसका इलाज सिर्फ एक था, वैक्सीनेशन। क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर टू प्रिवेंट द थर्ड वेव। थर्ड वेव कोई कुछ भी कह ले, सेकंड वेव भी सबने कह दिया था नहीं आएगी, हिंदुस्तान मस्त हो गया। थर्ड वेव के आने के चांसेस बहुत हाई है। ये इसलिए आती है क्योंकि जब ये वायरस ने अटैक बहुतों को कर दिया और उसके बाद में ये लो हो गया, तो ये वायरस म्यूटेट करता है। इस वायरस में चेंजेस आते हैं, और चेंजेस ऐसे आते हैं कि ये इंसान में पहले घुसने से इंसान ने धक्का ऐसे दिया, अब इंसान धक्का नहीं देगा। और अब हुआ क्या, डॉक्टर अनुज से मैं आज डिस्कस कर रहा था, ये नई वाला जो वायरस है ये मल्टी इन्फ्लेमेशन बहुत हाई कर रहा है। ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई। पहली बार ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं थी, पहली बार एडमिशन की इतनी जरूरत नहीं थी, पहली बार वेंटिलेटर की इतनी जरूरत नहीं थी, ज्यादातर एसिम्टोमेटिक थे या 5 दिन में ठीक हो रहे थे। अब एक तो लोग ज्यादा अफेक्ट हुए, और दूसरा इसमें सांस की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन इतनी हाई हुई है कि तीसरी वेव, लोग कहते हैं बच्चे अफेक्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि जब ज्यादा लोग अफेक्ट होंगे तो उनमें बच्चे भी अफेक्ट होंगे, और ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरह है। कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल मेरे को एक पेशेंट का फोन आया। एक तो पेशेंट, कल डॉक्टर अनुज ने बात की थी, पेशेंट थी यंग गर्ल,
यंग गर्ल की ओवरी बिल्कुल फूली हुई, ऐसे जैसे उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई हो। और जब अल्ट्रासाउंड कराया उसे कोई सिम्टम नहीं था, उसके चेस्ट के अंदर कंसोलिडेशन के साथ में पानी आ रहा था। अब अगर आप मुझसे पूछे, ये एक टिपिकल स्टोरी है इन्फ्लेमेशन की, और इस तरह के इन्फ्लेमेशन हमने पहले कभी देखे नहीं है, और ये बच्चों में भी लाजमी आएगा। तो थर्ड वेव से बचने का सिर्फ एक तरीका है, नंबर वन वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करा लीजिए, फर्स्ट। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग को कंप्लीटली मास्क होके रखिए। प्लीज मत सोचिए कि दुनिया आबाद फिर से वैसे ही हो गई जैसी अब से 1.5 साल पहले थी। और तीसरा, इस थर्ड वेव के होने के लिए हमें तैयारी करनी है। जो तैयारी सरकार को करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजनेशन, बेटर बेड्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, दवाइयों की सप्लाई, सिस्टम्स, डेटा, वो तो अलग है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपने को पहला वैक्सीनेट कर सकते हैं, नंबर दो सोशल डिस्टेंसिंग करके मास्किंग कर सकते हैं, तीसरा जो जरूरी हो सिर्फ वही लोगों से मिले, और चौथा, हम लोग अपने आप दवा ना लेके और डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवा लें। अपने आप दवा लेने से और गलत दवा लेने से बड़ी दिक्कत हो रही है। पांचवा पॉइंट और है जो बहुत रेलिवेंट है। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया जिसकी आंखें पूरी लाल हो रही थी, होंठ उसके लाल हो रहे थे और बच्चा बिल्कुल लिथार्जिक हो रहा था। मैंने उनसे पूछा आपके घर में किसी को कोविड हुआ था? उन्हें नहीं मालूम था। मैंने बोला कि बच्चा आपका सीरियस है क्योंकि उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, और वो पेशेंट मुझे थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग नज़र नहीं आया। तो मैंने उनको बोला भाई आप इसे मेडिकल कॉलेज ले जाओ, इसमें मुझे रिस्क ज़्यादा लग रहा है और इसके अंदर खर्चा बहुत आएगा। उसके जो मालिक हैं, ही वॉज अ नाइस मैन, मिस्टर आदित्य ग्रोवर। ही कॉल्ड मी, डॉक्टर साहब बिल्कुल चिंता नहीं करें, जितनी महंगी दवाई लगनी हो लगाइए, जो टेस्ट कराना हो कराइए। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बच्चे का इलाज कीजिए, जो होगा वो मैं बर्डन देखूंगा। लकीली उस बच्चे का मेडिक्लेम हुआ हुआ था। अब मेडिक्लेम का क्या फायदा हो गया, उस बच्चे को मैंने एडमिट करा। और ये जो आप डी डाइमर और फेरिटिन और ये सब टेस्टों की बात कर रहे हैं, डी डाइमर जो टेस्ट है अपने आप में 2000 रुपीज प्लस का टेस्ट है। मैंने उसके सारे टेस्ट कराए और सारे टेस्ट सब खराब आए। और उसके अंदर कोरोना आरटीपीसीआर तो नेगेटिव था, मगर कोरोना की एंटीबॉडी पॉजिटिव थी। तो जो कोरोना कोरोना ने एंटीबॉडी उसके अंदर बनाई, उससे उसका ऑटो इम्यून सिस्टम फाइट करा, और उससे जो अभी आपने एक बीमारी का नाम बोला था, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो गया, जिसने उस बच्चे के हार्ट पे और उसे पूरा लाल सुरख कर दिया। बच्चे को इर्थ्रोडर्मा हो गया उसके। और उसको लड़ने के लिए सिर्फ एक ही दवाई है जो बहुत इफेक्टिव है, उसका नाम है IVIG, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। वो 16 किलो का बच्चा था, तो उसे मैंने 35 ग्राम दवाई लगानी पड़ी। वो पूरे वर्ल्ड में वो दवाई बहुत मुश्किल से बनती है और इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। उसकी एक डोज 5 ग्राम वायल, एक डोज 8,000 रुपये की पड़ती है। तो अगर आपने उस बच्चे के 7 वायल लगाई तो 7 8 56, 56,000 तो इसी दवाई दवाई में उसके चले गए। अब कितना अच्छा हुआ उसका मेडिक्लेम हुआ था, ये बर्डन उस फैमिली पे, उस फादर पे नहीं पड़ा। और डॉक्टर भी थोड़ा, अब आज भी मैंने उसके टेस्ट कराए, आज उसके टेस्ट थोड़े बेटर हो गए हैं। तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि इसको इस पे बर्डन होगा। तो अगर थर्ड वेव के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराए हुए हैं तो प्लीज़ मेडिकल इंश्योरेंस कराइए। और हो सकता है आपके मेडिकल इंश्योरेंस कराने से किसी और की जान बच जाए। जरूरी नहीं है वो पैसे जो आप लगाएंगे वो आपके बच्चों पे या आपके ऊपर ही खर्च होंगे। बट हमारे और भाई बहन हैं जिन्होंने औरों ने भी मेडिक्लेम कराया है, उनके लिए एक अच्छा इलाज मिलेगा उन्हें। और वो एक प्रॉपर सिस्टम में एक प्रॉपर डॉक्टर पे बिना हिचक जल्दी पहुंच जाएंगे। रादर वो जब जाएंगे बिल्कुल आस भी टूट गई और सांस भी टूट गई तब जाएं, इससे बेटर है पहले ही राइट टाइम, जब एक बीमारी को कंट्रोल करने का टाइम होता है तब जाएं। मेरी एक रिक्वेस्ट और है यहाँ पे, जिन बच्चों का बुखार नहीं उतर रहा, बिल्कुल भी मैफ्नेमिक एसिड या मेफ्टाल ना दें उन्हें। पैरासीटामोल से बुखार उतारें, स्पंजिंग करके बुखार उतारें।
गुनगुने पानी से, और तीसरा उन्हें एनर्जी ड्रिंक या ग्लूकॉन डी वाटर थोड़ा थोड़ा सिप में या एक एक चम्मच से पिलाते रहें, तो देखिए उनका बुखार उतर जाएगा। आप जबरदस्ती बुखार उतारते हैं मेफ्टाल टाइप की दवाई देके, मैफनिमिक एसिड देके, तो उससे उन बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफी खराब हो जाता है, और उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने वाले सेल्स हैं वो बैठ जाते हैं इन दवाइयों से, और पिक्चर जो है वो मास्क हो जाती है। जो मैफनेमिक एसिड है उससे बॉडी पे रैश भी आ जाता है, तो डॉक्टर के लिए एक बड़ा डबल एज सॉर्ड होती है मैफनेमिक एसिड। अब ये नहीं पता चलता रैश मैफनेमिक एसिड से आया है या मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शुरुआत है। और जब भी कोई बीमारी नई होती है तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को उसके बारे में नहीं पता होता, बिकॉज जो डॉक्टर कम्युनिटी मेडिसिन कर रहे होते हैं, जैसे हम कम्युनिटी में बैठे हैं तो हम वही बीमारी देख रहे हैं, उसी के बारे में जानते हैं। जब सबसे पहले डेंगू आया तब लोगों को नहीं पता था इसकी प्लेटलेट चढ़ानी है या नहीं चढ़ानी है, फिर धीरे धीरे पता चलता गया कि इसमें प्लेटलेट चढ़ाने का कोई खास काम नहीं है। फिर चिकनगुनिया आया, तो चिकनगुनिया में मैंने देखा कि सबसे पहले जो बच्चा मेरे पास आया उसके ब्लिस्टर पड़ गए पैरों पे, वो मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो ऐसे ही हम हर बीमारी को धीरे धीरे ही समझ पाते हैं। अभी मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी है, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है, कम दवाइयाँ यूज करें और अपने आप को मेंटली रेडी रखें कि भगवान ना करे कभी इतनी बड़ी इमरजेंसी होगी तो हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन परचेज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। देखिए, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये डिजीज एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। कल डॉक्टर अनुज, मेरा एक लेक्चर था पंजाब हिसार में, पंजाब इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी में बहुत काम है एंड कुछ रिसर्चेस भी करते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है विच हैज कम इन दिस ईयर इटसेल्फ, जिसमें इसने यहाँ तक हालत कर दी कि इसने स्पर्म की जिन जिन को कोविड हुआ है मॉर्फोलॉजी खराब कर दी, टेस्टिस को अफेक्ट कर दिया। टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन देने के बाद में, क्योंकि उसमें एस रिसेप्टर बड़े हाई होते हैं, इसमें एस रिसेप्टर चाहिए होते हैं, आदमी की टेस्टिस में एस रिसेप्टर्स बहुत हाई होते हैं। इसने ये सिचुएशन कर दी कि स्पर्म का नंबर, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का डीएनए, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, तो सबसे सेंसिटिव जो बनने वाला हमारी बॉडी का सेल होता है आदमी में, वो स्पर्म होता है, उसको इस रूप में अफेक्ट किया दैट इट इज अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बीमारी ना हो, प्रिवेंशन इज द स्टोरी। क्योंकि एक बार हो गई फिर तो ये जो वायरस और आपका शरीर खेल खेलेगा उस पर आपका बहुत कोई जोर है नहीं। जोर हाँ ये जरूर है कि डॉक्टर से सलाह लेके इलाज प्रॉपर ले लें, पर ये खेल तो खेला ही जाएगा, तो इससे बचना बहुत जरूरी है। Thank you so much, Dr. Sunil. Deepmanji, we can take few questions because we are running short of time now. Right. Thank you, Dr. Sunil and Dr. अगर दीपान जी आपको कुछ ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन अभी तक आंसर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क। Right. Very common question, sir. Was it always there in the first time when the COVID started, or is it seen only in the second wave? Black fungus is always there in the atmosphere from the very beginning till now. In the first COVID wave, it was less. Not many people got affected. There was not such a bad situation for oxygen that industrial oxygen needed to be given. It was not a situation where oxygen was given at home and the bottles used were not fine. There was not so much of steroid used in the first wave by people even at home. Nobody took steroid at home. Now everybody took steroid. Diabetes were not tested. Because of this reason, black fungus has come up this time, where it was very rarely seen by anybody anywhere in the world. पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई, यहाँ पर आई, तो इसलिए सेकंड वेव में यहाँ पर हमें दिख रही है। Now there is another question. Let's say post-COVID, is there any way they can figure out that I'm getting this black fungus? Yes. You have to keep care of four things. If you have been on oxygen, on mask, and you have received steroids,
and you're a diabetic, you have to be very cautious. You will come to know it by the fact कि आपके नाक के दोनों तरफ दर्द हो सकता है, आंख में सूजन हो सकती है, साइनोसाइटिस टाइप का दर्द हो सकता है, काले रंग के धब्बे आपके चेहरे पे आ सकते हैं और सर में दर्द होते हैं। ये तो वो वाली फंगस है जो सामने दिख रही है, पर अगर ये लंग्स में होती है तो जैसा डॉक्टर अनुज ने कहा, इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। फीवर आपका ना जा रहा हो, खांसी आपकी फिर भी चल रही हो, तब ये फंगस होने की संभावना है। So we all are, and many people are following the steam inhale and all. Does it trigger the black fungus to happen? Steam does not trigger black fungus to happen. Just understand. But steam, if not taken, and please understand another thing, steam is warmed up water, which is going in a heat. So it definitely will not be having fungus as long as your utensil is absolutely clean. But you only need to take steam so that you may be able to open up your lungs and change the pattern of the mucus inside for it to come out. It is not that you have to take steam like was thought once earlier. पिछले साल मेरे को इतनी सारी वीडियो आई कि उन्होंने क्या किया कि गर्म करने के लिए वो जो हेयर ड्रायर नहीं होता, वो नाक के अंदर चलाना शुरू कर दिया कि क्या है साहब, ये वायरस जो है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है, तो उन्होंने अपनी नाक में हेयर ड्रायर लगाना शुरू कर दिया। अब अगर आप मुझसे बात पूछें, व्हाट्सएप बड़ी कमाल की चीज है। व्हाट्सएप में अभी एक साहब की मैंने व्हाट्सएप देखी, बड़ी भाई साहब वायरल। उन्होंने पहले तो ब्लैक फंगस के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि सरसों का तेल नाक के अंदर मल लीजिए, सरसों का तेल मुंह के अंदर मल लीजिए, एक और मैं कान के अंदर लगा लीजिए। एलोपैथिक दवा एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर स्टडी रिसर्च आती है, जो चीज उस टाइम पर ठीक लगती है वो यूज की जाती है, और आज तक एक दुनिया में इतने लोग जो बचे हैं वो उसकी वजह से बचे। इसको सिर्फ इसलिए नकारना कि एलोपैथिक दवा गर्म होती है, भाई साहब ठंडी दवा खानी है, तो भाई साहब चाय कहाँ बनती है इस दवा की, आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, ये कहानी है। तो मेहरबानी करके एक चीज को समझ लीजिएगा, ऐसा मत कीजिए कि अपना टेस्ट ना कराएं, ऐसा मत कीजिए कि डॉक्टर को कंसल्ट ना करें, ऐसा ना करें कि सोचे कि किसी रूप में कुछ नहीं हो सकता। ये सब लेने के बाद में समस्या हो सकती है। मेहरबानी करके डॉक्टर को कंसल्ट करें। देखिए सुनील भाई, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा। जब मैं ऐसे पेशेंटों से पूछता हूँ कि भाई आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहोगे तो मीठी दवाई वाला बनाना चाहोगे या हमारे जैसा कड़वी दवाई वाला, आज तक एक भी पेरेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे मैं मीठी दवाई वाला डॉक्टर बनाऊंगा। ये बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। वो अपने बच्चे को तो कड़वी दवाई या गर्म दवाई नहीं देना चाहते, बट वो चाहते हैं उनका बच्चा सबको बड़ा हो कि कड़वी दवाई गर्म दवाई दे। तो पॉइंट है। और आप बिल्कुल भी देखिए, सब कुछ हमारा साइंस से ड्रिवन है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे पास रोज बच्चे आते हैं और कई बार 1 और 2% बच्चे मुझे समझ में भी नहीं आते नहीं क्या हो रहा है, जबकि मैंने अपनी जिंदगी लगा दी बच्चों को समझने में। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं पढ़ता नहीं और बच्चों के बारे में सोचता नहीं है। ये सब बहुत आसान नहीं है, और हम साइंटिफिक लोग होके सब चीजों का इलाज नहीं कर पाते, तो जो प्रॉपर ट्रेनिंग लिए हुए भी नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। Dr. Sunil, this question is from Dr. Rajiv. He's asking, what is the precaution to be taken while using a oxygen concentrator? Fantastic question. First thing to understand, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज के दिन में इस पूरी मार्केट में भर गया। हर आदमी ये पूछता 5 लीटर का लूं या 10 लीटर का लूं। तो इसमें 3 चीज आपको समझनी है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जो मोटर कंप्रेसर क्लियर करती है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट करती है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होता है कि आप 5 लीटर वाले में 5 लीटर की फ्लो पर कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब कंप्रेसर लगा हुआ है छोटा, पंखा लगा हुआ है बड़ा, कंप्रेस किया 1 लीटर के लिए, तो 1 लीटर 90% ऑक्सीजन 5 लीटर में जब मिलेगी तो 30% देगी, 21% हवा में होता है। तो इस तरह के लेके तो कोई फायदा नहीं। आज के दिन में हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए आपको 5 लीटर का नहीं, कोविड के केस में 10 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर लेना चाहिए, जिसमें कंप्रेसर करीब करीब 20 किलो के आसपास का हो, जो 10 लीटर पे भी 90% ऑक्सीजन तैयार कर रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे कि एसी है,
एसी के अंदर आपने कंप्रेसर तो लगा दिया भाई साहब 1 टन का, और पंखा लगा दिया 10 टन का, और आपने बेच दिया पूरा एसी 10 टन का करके, क्या ठंडा करेगा 10 टन का? वो सिचुएशन है कंप्रेसर की। एक नंबर 2, अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर आपने लगाया है तो इसमें जो आप ट्यूबिंग लगा रहे हैं वो साफ लगाइए, जो बॉटल है उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरिए, डिस्टिल वाटर डेली चेंज होना चाहिए, बॉटल गर्म पानी से डेली धुलनी चाहिए, और जो आप पाइप लगाते हैं ऑक्सीजन का अपने चेहरे पे, डिस्पोजेबल होता है मंगवाइए, हर दिन यूज करिए, फेंकिए। इसकी ये पूरी प्रिकॉशन लेनी है। Great, sir. So I'll merge two questions. One is from Dr. Akshay Karamore. He's asking, hello sir, thanks for the very precious session. And is influenza vaccine has decreased the chance of phase 3 in children? And there is another question, can the nimesulide, this is from Dr. Ravindra, can the nimesulide be used as a antipyretic in pyrexia, responding not very well in paracetamol? Dr. Anuj, I think you'll answer this question better. देखिए, जहाँ तक फ्लू वैक्सीन की बात है, it was seen 30% of deterioration in COVID patient was because of flu infection. This is a comorbidity in form of a flu. So there is no harm in continuing flu vaccination. Otherwise also, if you don't think about COVID vaccination or COVID infection, you should still give flu vaccine, especially to the people, those who are 50 year plus. They should be given 5 vaccination. Flu vaccine, pneumococcal vaccine, on 13 valent, and after 1 month, pneumovax or 23 valent, plus 1 MMR vaccine and Adacel vaccine, this diphtheria, pertussis, and tetanus vaccine. All these 5 vaccines to be given to people, especially more than 50 years, and flu vaccine should be given to everyone 6 months onward. Every year it should be given. It is very useful. It reduces your cough and cold by 30%. And it is well documented, those who are suffering from COVID, they have lesser need of intensive treatment. And a thalassemia patient can also take a COVID vaccination. There is no limitation for this. And another question about pneumoslide. देखिए, जब भी आप अगर जबरदस्ती फीवर उतार रहे हैं, अगर उस फीवर में सपोज देयर इज नथिंग सीरियस, यू आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस, सो यू आर नॉट मास्किंग एनीथिंग, बट यू नेवर नो व्हाट यू आर मास्किंग. आपने एक स्यूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी ले ली, फीवर खत्म हो गया, बट अंदर ही अंदर फर्नेस जो है वो ऑन है, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. आप न्यूस्लाइड बहुत नेसेसरी है. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स, and your system, you are hemodynamically stable, there is no focus for the fever, and you can think of taking pneumoslide, but not in as such. If on the 5th day or 6th day in COVID you are having a fever of 102, 103, don't take pneumoslide, because that will allay your anxiety, but side by side that can increase the severity of the illness, because you will think you are better, you will not go to the doctor, you will not go for the test, you will not get your x-ray or whatever doctor will advise to you. So it will be a false sense of security by taking pneumoslide. It's a very strong antipyretic. It too works, but only symptomatically. Sir, we will end today's session with the last question. Do all the COVID patients need to be careful, and for what is that window? Like how many days after they recover they should be worried for black fungus? All COVID patients need to be careful. First statement. Second statement, it is seen that the time which is known as the short-term COVID means after the COVID, how much time is needed for recovery and for you to feel it's okay. अगर कोई सिम्टम परसिस्ट नहीं कर रहा तो 4 हफ्ते, और अगर कोई सिस्टम परसिस्ट करता है तो तब तक जब तक वो सिस्टम डायग्नोज होके ये ना क्लियर हो जाए कि ये किस कारण से. Thank you so much, Dr. Sunil and Dr. Anu sir. For all our audience, there is a beautiful video by Dr. Sunil Jindal. We will be sharing to all of you who have registered by email as well. And even after the session, we will play it. Please spare your time. This is very informative. And now, CoverPace Cover Story is such a platform. It answers so many hidden questions, and when the two specialists talking and understanding and the right kind of question has been discussed,
It's not only to restrict for our own learning. Please spread it. This is what we can do the best sitting at home today. Digital platform hai. Let the actual information pass on to many people who can be benefited out of it. So with this, we will be, Dr. Anuj. We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hopes. This is very well said by Martin Luther King Jr. And this app today also. And please understand this and don't lose your hopes. फिर हम सब पहले जैसा हो जाएगा. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Sunil Jindal, sir, and Dr. Anuj Asturi, sir, and all our audience. Please follow the Facebook channel and the YouTube for the detailed information. And as you are all aware, Plan Ahead Conclave is on, and tomorrow we are having a beautiful session. So every Friday, Saturday, and Sunday. So do check on I'm the Best Mom. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sunil. So thank you very much. Thank you, Dr. Anuj. Thank you so much. I'm the best mom. And it's been so nice the way you have compared it. And thank you, everybody, for being here. And Dr. Anuj, you're doing a great job. I'm so happy and so proud of you, I can't tell you. Thank you very much for inviting me. It truly has been a privilege and an honor.